ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شوہر نے طلاق دے دی تو ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور روتے ہوئے بولی، میرے بیٹے نے غصے میں تجھے طلاق دی ہے، اگر تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، میں تیرا حلالہ کروا دوں گی۔ میں بھی مان گئی کیونکہ 3 بچوں کے ساتھ مجھے کون اپناتا، پر میرے ہوش اڑ گئے جب اگلے دن ہی ساس گھر ایک ایسی چیز لے آئی اور بولی، تیرا حلالہ۔ کہتے ہیں گھر بسانے کے لیے عورت کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میری زندگی بھی ایسی ہی گزری تھی، احسار اور شوہر کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب غصے میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میرے پاس حلالے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اپنوں کا دھوکہ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ میں نے بھی ساری زندگی دوسروں کے لیے سزا بھگتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ میری کہانی اور میرا درد صرف وہی جان سکتا ہے جو عورت اس تکلیف سے گزری ہو۔ میری کہانی کچھ یوں ہے۔ میرا نام نعیمہ ہے، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، 3 بچے ہیں میرے۔ میں اپنے سسرال میں ہنسی خوشی اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر میری زندگی نے میرے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کر دیے۔ زندگی کے ان کھیلوں کی وجہ سے میں نہ جانے کس اذیت کے دہانے پر کھڑی ہو گئی ہوں، جس سے میری زندگی برباد سی ہو گئی ہے۔ میرے شوہر کی خوبصورتی نے میری زندگی پر بری طرح سے اثر کیا ہے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ میرے اماں بابا نے تو اس کا رشتہ آتے ہی ہاں کر دی تھی، کیونکہ میں ٹھہری غریب گھرانے کی لڑکی۔ جب اتنی اچھی جاب اور خوبصورت شکل والے کا رشتہ آئے تو ہمارے لیے مال غنیمت ہوا نا، اسی لیے میں بھی مان گئی۔ اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی میں، وہ پہلے ہی بہت تکلیفیں سہ چکے تھے، بدنامی سے گھائل تھے وہ ہماری وجہ سے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں بابا نے ہمیں بہت اچھے سے پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ لوگ ان کو بہت احساس دلاتے تھے بیٹی کی محرومی کا۔ کئی لوگوں نے بابا کو دوسری شادی کرنے کا کہا تھا، مگر میرے بابا کا کہنا تھا، ہم 3 بیٹیاں ان کی کل کائنات ہیں، ان کو مزید ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ کے حکم سے ایک اور اولاد آ جائے تو منظور ہے، مگر وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ ان کو ہم پر بہت ناز تھا، ہم بیٹیاں ان کا فخر تھیں، مگر ہم بیٹیوں نے ان کا سر شرم سے جھکا دیا، ان کے فخر کو پچھتاوے میں بدل دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی میرے بابا نے کبھی میرے لیے اپنی محبت میں کمی نہیں کی۔ ہم تینوں بہنوں کو انہوں نے بہت اچھی تربیت دی تھی اور اچھا پڑھایا تھا۔ مجھ سے بڑی دونوں بہنیں کالج جاتی تھیں اور میں اسکول جاتی تھی۔ کچھ دن سے میری بڑی بہن کالج سے دیر سے آنے لگی تھی، میری دوسری بہن جلدی آ جاتی تھی، مگر وہ دیر کر دیتی تھی۔ جب دوسری بہن سے اس کا پوچھتے تو کہتی کہ وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے کے لیے دوست کے ساتھ گئی ہے۔ ہم تو مطمئن تھے اس بات سے، پر ہمیں اصل بات تو معلوم ہی نہیں تھی کہ اصل بات تھی کیا، کیونکہ اماں بابا کو ان پر بے حد یقین تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہم پر یقین کرتے تھے، جو میری بہنیں کہتی تھیں وہ مان لیتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی بیٹیاں دھوکہ دے جاتی ہیں، اندھا اعتبار بعد میں پچھتاوا بن جاتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے اماں بابا کے اعتبار کی کرچیاں ہو گئی تھیں۔ کچھ دن سے میں دیکھ رہی تھی میرے اماں بابا بہت پریشان رہنے لگے تھے، اور میری بہن کا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، وہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی، ورنہ وہ بہت اچھی تھی۔ میں چھوٹی ہونے کے ناطے سے ہمیشہ اس سے محبت سمیٹتی آئی تھی، لیکن اب وہ مجھے بھی اگنور کر دیتی تھی۔ اکثر و بیشتر تو جب میں ان سے کچھ پوچھتی یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی، جبکہ میں تو صرف ان کے اس رویے کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ پر ایک دن ہمارے گھر میں کوہرام سمجھ گیا تھا، مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اس دن میں اسکول گئی ہوئی تھی۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو بابا مجھے لینے نہیں آئے تھے، ان کو دیر ہو گئی تھی، اور میں پریشان سی اسکول میں انتظار کر رہی تھی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ کافی انتظار کے بعد مجھے اپنے دوسرے نمبر والی بہن لینے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بابا کیوں نہیں آئے، تو اس نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں تو ان کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو گئی۔ جب ہم گھر آئے تو بابا کمرے میں موجود تھے اور بیڈ پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ شکل سے ہی برسوں کے بیمار لگ رہے تھے، جبکہ اماں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا خدشہ ہوا تھا، لیکن گھر والوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن مجھے جلدی بات پتہ چل گئی جب محلے والے باتیں بنانے لگے اور اپنی بڑی بہن کی غیر موجودگی محسوس کی، اور جب مجھے وجہ پتہ چلی تو میری حالت بھی گھر والوں سے مختلف نہ تھی۔
میری بڑی بہن جو اتنی محبت کرتی تھی ہم سے، وہ گھر سے بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ، اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کے اماں ابا سے جھگڑا چل رہا تھا اس لڑکے کی وجہ سے۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، چونکہ لڑکا اچھا نہیں تھا اور کام دھندا بھی نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اماں بابا نہیں مان رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ نہیں مانی کیونکہ اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ ہم لوگوں سے بیزار تھی اور پھر اپنی خود غرضی میں وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اماں بابا کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ ان کا کیا ہوگا، پیچھے کتنی بدنامی ہوگی ہماری، کچھ نہیں سوچا تھا اس نے۔ پھر بھی سب میں جو بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ میری دوسرے نمبر والی بہن مطمئن سی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا شاید وہ ہماری وجہ سے پریشانی ظاہر نہیں کر رہی ہو، اور اماں بابا کو بھی تو انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ پھر یوں ہی کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک دن میری اس بہن کا رشتہ آیا جو کہ ہمارے خاندان والوں میں سے تھا۔ اتنی بدنامی کے بعد بھی ایک اچھا رشتہ آیا تھا، اس لیے بابا نے دوسری بہن کا رشتہ وہاں طے کر دیا، ان سے پوچھے بغیر کہ بیٹی ہے بھلا اس کو کیا اعتراض ہوگا۔ اور یہیں پر انہوں نے غلطی کر دی تھی، جبکہ بہن نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اس نے یوں ظاہر کیا تھا کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ پر جب شادی کا وقت آیا تو اس دن ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا جس سے ہماری زندگیاں دہل گئیں۔ شادی کے دن میری دوسری بہن بھی بھاگ گئی تھی اور ایک خط چھوڑ گئی تھی جس سے ایک نیا انکشاف ہوا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور یہ شادی کرنا نہیں چاہتی، اور جس کو پسند کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بڑی بہن کا دیور ہی تھا۔ اس نے ہی بڑی بہن کے بھاگنے میں مدد کی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی بابا نہیں مان رہے تھے میری بڑی بہن کے لیے، تو اس کے لیے بھی نہیں مانیں گے، اس لیے دونوں نے منصوبہ بنایا تھا گھر سے بھاگنے کا۔ وہ دونوں ساتھ تو ہمیشہ تھیں، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتی تھیں، مگر اس حد تک وہ دونوں اپنے گھر والوں کے خلاف جائیں گی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ان کے بھی گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بدنامی ہو گئی تھی، اور میرے بابا تو بستر سے جا لگے تھے۔ جن بیٹیوں کو اتنی محبت سے انہوں نے پالا تھا انہوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر بابا نے بیچ دیا اور ہم شہر بدل کر دوسرے شہر آ گئے، کیونکہ وہاں رہنا ہمارے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ روز لوگوں کی نئی نئی باتیں، تانے، میرا اسکول جانا تک مشکل تھا۔ عجیب عجیب لڑکے راستہ روک دیتے تھے میری بہنوں کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے تھے۔ جبھی ہم وہ شہر چھوڑ آئے اور نئے شہر آ بسے، اور اب ہمیں یہاں رہتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے جب اپنے محلے سے یہ ایک اچھا رشتہ آیا، اور میں نے سوچ لیا تھا اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دوں گی، باقی 2 بہنوں کی طرح میں نہیں بنوں گی۔ میری ہاں سن کر میری شادی بھی اماں بابا نے جلدی کروا دی۔ اس کے ساتھ میرے سسرال والے بھی اچھے تھے۔ شروع میں میری اچھی نبھ رہی تھی، مگر اپنے شوہر کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کبھی اتنے مہربان ہوتے تھے مجھ پر کہ جیسے میرے عشق میں دیوانے ہوں، اور پھر کبھی تو یوں نظر انداز کر دیتے تھے جیسے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ مجھے ان کے اس دھوپ چھاؤں جیسے رویے سے ہمیشہ سے الجھن ہوتی تھی۔ میں اکثر اوقات اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی تھی، وہ مجھے خوش دیکھ کر مطمئن تھے، اور میں نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میری جو بہنیں تھیں وہ اسی شہر میں رہتی تھی۔ میں نے ایک بار دیکھا تھا ان کو اسی شہر میں، لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی تھی، مگر ان کی حالت دیکھتے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ خوش نہ ہو، پر زیادہ بہتر اللہ جانتا تھا۔ یوں ہی زندگی گزرنے لگی۔ میرے شوہر کا رویہ ویسا ہی دھوپ جھاؤں جیسا تھا، مگر پھر جب ہمارے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو ان کا رویہ بہت اچھا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ یوں ہی اچھے رہے اور ہمارے 3 بچے ہو گئے تھے۔ لیکن اب جانے کیوں مجھے اپنا شوہر کھٹک رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں، کیونکہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے لگا شاید واش روم میں ہو، اس لیے اطمینان کر کے دوبارہ کروٹ لے کر سو گئی، مگر میں نیند میں بھی بے چین تھی، اس لیے کچھ دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی۔ اس بار میں اٹھ بیٹھی اور واش روم کی طرف تکنے لگی، مگر میری یہ خوش فہمی تھی کہ وہ واش روم میں ہیں، کیونکہ واش روم کی لائٹ بند تھی، جو میں نے پہلے نیند میں ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھی تھی، پر اب دیکھ لی تھی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ فوراً بیڈ سے اٹھ کر میں نے واش روم کا دروازہ کھولا اور لائٹ چلائی۔ واش روم واقعی میں خالی تھا۔ میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی، بچوں کا کمرہ بھی دیکھ لیا، وہاں بچے اطمینان سے سو رہے تھے، جبکہ میرے شوہر وہاں بھی نہیں تھے۔ میں نے سوچا اپنی ساس کو اٹھاتی ہوں، لیکن ان کی نیند کیوں خراب کروں۔ میں یہ سوچ کر میں نے ان کو نہیں اٹھایا اور واپس کمرے میں آ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر مجھے انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی صبح ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے شوہر آئینے کے سامنے کھڑے
ऑफिस जाने के लिए तैयार थे और बालों में ब्रश कर रहे थे। रात को क्या गधे बेचकर सोई थी। चलो नाश्ता दो आकर, मुझे ऑफिस जाना है। इनके ताने भरी बातें सुनकर मुझे याद आया कि वो रात घर में नहीं थे और मैं उनका ही इंतजार करते करते सो गई थी। वो न जाने किस वक्त वापस आए होंगे। मैं तेजी से बेड से उठकर उनसे ये पूछने के लिए उनकी तरफ लपकी, मगर वो तो कमरे से बाहर निकल गए थे। फिर इसके बाद मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। मेरी सास भी उठकर आ गई थी। मुझे वक्त नहीं मिला उनसे पूछने का। उनके जाने के बाद बच्चों को उठाया और तैयार करके उनको नाश्ता खिलाया। फिर शाम को मेरे शौहर जल्दी से ऑफिस से वापस आ गए। इनकी इतनी जल्दी आमद पर मैं हैरान थी, मगर बाद में मालूम हुआ कि इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो वापस आ गए थे। इनके सर में शदीद दर्द था तो मैंने चाय बनाई और पैनाडोल के साथ उनको दे दी। दवाई लेने के बाद उनका सर दबाने बैठ गई थी और इस सिचुएशन में रात वाली बात मेरे जहन से निकल चुकी थी। क्योंकि उनका रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने भी जो दिल में कल रात मैल आया था मैंने वो निकाल दिया तो सब पहले जैसा अच्छा अच्छा दिखने लगा। मगर कब तक? आखिरकार तो मेरी आंखों पर बंधी उनकी मोहब्बत की पट्टी खुलनी थी और वो खुल भी गई तब जब मैंने उनका असल चेहरा देखा था। मैं सोचती हूँ अगर इस रात मेरी आंख ना खुलती तो शायद आज मैं यूं ही आबाद और खुश होती, मगर फिर मेरे शौहर की असलियत भी तो खुलनी थी ना मुझ पर। अब सोचती हूँ अच्छा ही हुआ जो मुझे उनकी असलियत का पता चल गया, वरना मैं यूं ही सारी उम्र बेखबर रहती और न जाने फिर क्या नतीजा निकलता इस सब का। मैंने इस बात पर खूब झगड़ा किया था अपने शौहर से और ये झगड़ा हमारा मुसलसल 1 हफ्ते तक जारी रहा था। हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी थी, मुखातिब तक नहीं करते थे हम। फिर और इस बात का असर मेरे बच्चों पर पड़ रहा था। मेरी बड़ी बेटी अब समझने लगी थी हमारे रवैये को, तो अब वो सवाल करने लगी थी मुझसे इस बाबत कि मामा, पापा और आप एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। इसके सवाल पर मैं हैरान हो गई कि अब मेरे बच्चे भी हमारे रवैये को नोट कर रहे हैं। मैंने तो इससे प्यार से बहला फुसला लिया और इस बात से उसका ध्यान हटा दिया, मगर मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी। अगले रोज़ ही मैंने अपने शौहर को बता दिया और कहा कि ख्याल रखें और शर्म कर लें, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं और हमारे रवैये को समझने लगे हैं, हमारे झगड़े की नोयत जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप हैं कि परवाह ही नहीं आपको। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठे। तो क्या करूं? मैंने तो नहीं शुरू किया, तुमने ही रोना डाला हुआ है इतनी सी बात पर। अगर ख्याल होता तुम्हें खुद को, बच्चों का, तो थोड़ी सी शर्म तुम खुद ही कर लो और ख़त्म कर दो ये झगड़ा। इनकी इस बात पर मेरा दिमाग घूम गया। मेरी ज़िंदगी ख़राब करके वो कह रहे थे इतनी सी बात पर मैंने फसाद डाला हुआ है। इतनी सी बात लग रही है आपको मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये। और किस बात पर मैं शर्म करूं? हाँ, गलती पर आप हैं तो आपको सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। मैंने उनको बहुत कुछ सुना डाला और हमारा झगड़ा यूं बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बात इंतहा पर पहुंच गई। मेरी सास भी हमारी चीखों से होल कर वहां आ गई। क्या हो गया है? इस तरह क्यों लड़ रहे हो? दोनों पागल हो गए हो क्या? बच्चों का ही ख्याल कर लो, कैसे सहम गए हैं तुम दोनों के झगड़े से। उन्होंने कहा तो मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा जो वाकई सहम चुके थे। इनकी शक्ल देखकर, उनके बारे में सोचकर मैं कुछ नरम पड़ गई, मगर मेरे शौहर के सर पर इस कदर गुस्सा सवार था कि नहीं अम्मा, अब इस औरत को इस घर में नहीं रखना, मैं इस औरत को तलाक दे दूंगा। इनकी बातें मुझे साकित कर दिया। यूँ लगा जैसे किसी ने जिस्म से जान निकाल दी हो। मैं फटी फटी आंखों से उनको देखती रही और लब यूं सिल गए गोया बोलना ही न जानते हो। फिर मेरे शौहर ने मेरे आंसुओं, अपने बच्चों के खौफजदा चेहरों का एहसास किए बिना मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मेरी सास चीखती रही, इनको मना करती रही, मगर इन पर किसी बात का असर न हुआ, जबकि मैं तो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। मुझे यकीन न आया कि उन्होंने तलाक दे दी है। वो खुद तो चले गए, मैं वहाँ से हिल भी न सकी, मगर जब मेरे शौहर ने तलाक दे दी तो मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई और रोते हुए बोली कि मेरे बेटे ने गुस्से में तुझे तलाक दी है, अगर तू घर छोड़कर चले गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इनकी बात सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा। बर्बाद तो मैं हो गई हूँ अम्मा जी, तलाक दे दी है मुझे आपके बेटे ने, चाहे गुस्से में ही सही। अब क्या हो सकता है? मैंने उनसे कहा, हुआ क्या था मुझे ये तो बताओ, किस बात से इस नतीजे पर पहुंच गए हो तुम लोग? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सारी बात बता दी। इस रात मैं सो रही थी, मगर अचानक बिजली चली गई तो गर्मी की वजह से मैं नींद में बेचैन हो गई। मुसलसल करवटें बदल बदल कर थक गई। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे बेड का बराबर वाला हिस्सा खाली हो। मैंने बंद आंखों के साथ ही हाथ बढ़ाकर इस जगह को टटोला, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं आंखें खोलकर उठ बैठी तो देखा मेरा शौहर वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे में भी अंधेरा छाया हुआ था
बच्चे दूसरे कमरे में सोते थे। मुझे लगा मेरे शौहर शायद बच्चों के डर जाने की वजह से उनके कमरे में गए हैं। मैं ये देखने के लिए अपने कमरे से निकलकर बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मेरे दिमाग से इस रात वाली बात निकल गई थी। अंधेरा बहुत था कमरे में। मैंने अपने शौहर को आवाज़ दी, मगर खामोशी थी। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए जाकर खिड़की खोली, जिससे पूरे चांद की रोशनी कमरे में फैल गई। बेड पर बच्चे सो रहे थे, मगर मेरे शौहर वहाँ पर नहीं थे। मुझे परेशानी ने आ घेरा कि वो कहाँ गए हैं। मैं एक नज़र बच्चों को देखकर कमरे से वापस निकल गई। खिड़की भी बंद नहीं की ताकि वो अंधेरे से डर ना जाएं, जबकि मैं खुद वहीं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी सोच रही थी कहाँ गए होंगे। मगर मेरी नज़र घर के खुले दरवाजे पर पड़ी। मैं हैरान हो गई और फौरन इस तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजे से बाहर सर निकाला तो सामने से ही मेरे शौहर आ रहे थे। इस वक्त वो बाहर गए थे, मगर क्यों? मैं उनसे पूछना चाहती थी। उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं उनको पुकारने ही वाली थी जब उनका मोबाइल बजा था। मैं रुक गई, जबकि उन्होंने भी कदम रोक दिए और जेब से मोबाइल निकालकर कान से लगाया। हाँ, घर पहुंच गया हूँ मैं, उन्होंने कहा तो मेरे कान खड़े हो गए। अरे नहीं, मेरी बीवी को कैसे पता चलेगा? वो तो सो रही होगी। आज तक इतने सालों से उसको नहीं मालूम हुआ, तो अब कैसे पता चलेगा उससे? उन्होंने जैसे मजाक में बात कही थी। मैं हैरत से वहां खड़ी रह गई। तजस्सुस होने लगा, वो किससे बात कर रहे हैं और क्या बात है? उन्होंने मुझसे क्या छुपाया है? हाँ ना, आप देखो कितने साल हो गए हमारी शादी को। उसको कभी मालूम नहीं हुआ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसके सोने के बाद तुमसे मिलने आता हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ और अब मुझे भी बेफिक्री से सोने दो। बहुत नींद आ रही है, फिर बात होगी तुमसे। उन्होंने कहकर मोबाइल जेब में रख दिया। जबकि उनकी बात सुनकर मैं समझ गई। उनकी हकीकत जानकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। जबकि उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भी रुक गए। फिर संभल कर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो रात को इस पहर? मैंने जवाब नहीं दिया, खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यहाँ क्यों खड़ी हो इस तरह? कहीं तुम मेरी पीठ पीछे किसी से छुपकर मिलने तो नहीं गई थी? मुझे धोखा तो नहीं दे रही तुम? वो अचानक चीख पड़े तो मैंने उनकी इस तरह की इल्ज़ाम तराशी पर उनको एक थप्पड़ मारा था। आपको शर्म आनी चाहिए। जो काम आप खुद कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी, कमरे में नहीं थे। मैं परेशान होकर ढूंढने लगी। फिर देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और आप बाहर से आ रहे थे। मगर आपकी सारी बात सुन ली मैंने, फ़ोन पर जो कर रहे थे। इस उम्र में 3 बच्चों के बाप होते हुए भी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने बहुत गुस्से से कहा था, मगर मैं जो इन पर हाथ उठाया था वो इस पर आग बगोला हो गए थे और मुझे बहुत सी बातें सुनाने लगे थे। अगले दिन उन्होंने अपने किए की माफ़ी भी मांगी थी मुझसे, मगर मैंने ये शर्त रखी थी कि वो अपनी अय्याशबाजियाँ छोड़ दें। मगर उन्होंने कहा वो नहीं छोड़ सकते, मुझे ऐसे ही उनके साथ रहना होगा। और इस बात पर हमारा एक हफ्ता झगड़े में गुजर गया। फिर आज ये नौबत भी आ गई और मुझे तलाक हो गई। अम्मा जी देख लें, सुन लें अपने बेटे के करतूत। वो अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। अपने बच्चों तक का नहीं सोचा। फिर मैं क्या करती? मैंने उनको समझाना चाहा था बहुत, मगर वो अपने खूबसूरत होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं बेखबरी में उनके साथ रह रही थी। उनका धूप छाँव जैसा रवैये पर समझौता करते हुए ज़िंदगी गुजारने लगी। मुझे सिले में क्या मिला? सिर्फ तलाक, वो भी 3 बच्चों के साथ। अब मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर? मेरे माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को पालें, क्योंकि सिर्फ खाना ही ज़रूरत नहीं होती, इसके अलावा भी हज़ारों ज़रूरतें हैं। मैं उनको बताते बताते रो पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों की बर्बादी का गम खाए जा रहा था और अपने बच्चों को उनके बाप के पास भी नहीं छोड़ सकती थी। न जाने वो शख्स मेरे बच्चों की ज़िंदगी के साथ क्या कर ले। बिल्कुल एतबार नहीं था उसका। मैं तेरा हलाला करवा दूंगी, कहा ना। गुस्से में तलाक दी है उसने, और औरत को समझौता करना ही पड़ता है। तुम बीवी हो इसकी, प्यार से समझाती, आहिस्ता आहिस्ता बात समझ जाता। तुम्हें अक्ल से काम लेना था, जज्बात से नहीं। मगर अब भी वक्त है, अक्ल इस्तेमाल कर लो। जज्बात में पढ़कर ये आखिरी मौका भी गंवा दोगी तो अपने साथ साथ बच्चों की भी रोल दोगी। उन्होंने मुझे समझाया, मगर हलाला कैसे कर सकती थी मैं? इस शख्स के साथ दोबारा रहना मेरे लिए मुश्किल था, मगर अपने बच्चों का सोचकर मैं फिर मान गई, क्योंकि 3 बच्चों के साथ मुझे कौन अपनाता? कोई भी नहीं। और अपने माँ बाप को मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकती थी, जाने वो मेरी तकलीफ़ सह पाते या नहीं। बस फिर क्या, मैं कल ही तुम्हारा हलाला करवाती हूँ। तुम तब तक सब्र से काम लो और बच्चों के कमरे में आज रात गुजारो। अब जाओ, शाबाश, बच्चों को देखो, डर गए थे, संभालो जाकर उनको। मेरी सास ने मुझसे कहा तो मैं कुछ मुतमईन सी हो गई और बच्चों के कमरे में आ गई और इनको संभालने लगी। फिर कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को जब मेरी सास मुझे खाने पर बुलाने के लिए आई तो मैं अपने बच्चों के साथ डाइनिंग हॉल तक गई।
मगर मेरा शौहर वहाँ बैठा हुआ था। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। ये गई नहीं अभी तक इस घर से। वो फौरन चलाए। आराम से बेटा, मैं बताती हूँ तुम्हें, खाने के बाद बात करते हैं। फिलहाल अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे ही देख लो और खामोशी से सब्र के साथ खाना खा लो। मेरी सास ने उसको समझाया तो वो एक नज़र बच्चों को देखकर खामोश हो गए और उनको अपने पास बुलाने लगे, मगर मैंने अपने बच्चों को इसके पास जाने से रोक दिया। उसने शिकायती नज़रों से मेरी सास को देखा तो उससे मुझे इशारा दिया। इसके बाद बच्चे उसके पास ही बैठ गए। मैं भी वहीं बैठी रही। मेरे हलक से तो एक नवाला भी नहीं उतरा था और वो शख्स जाने कैसे इतने आराम से खाना खा रहा था। तुम क्यों नहीं खा रही हो बहू, खाना खाओ ना। अम्मा जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझसे बोल पड़ी। जी हाँ, मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। खाने से फारिग होकर मेरी सास अपने बेटे के कमरे में चली गई बात करने, जबकि मैं अपने बच्चों के साथ उनके कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मेरी सास भी मेरे पास आई। मान गया है मेरा बेटा, अब तुम्हारा हलाला करवा दूंगी, उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। अपने बच्चों को मैंने थपक थपक कर सुला दिया, मगर मुझे जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी घबराहट और वहशत हो रही थी। इसलिए बच्चों के कमरे की लाइट बंद करके मैं कमरे से बाहर निकल आई। सोचा खुली हवा में सांस लूंगी तो बेहतर फील करूंगी। इसलिए मैं अपने घर की बड़ी सी बालकोनी में आ गई। जाने क्यों मेरा दिल किया एक बार अपना कमरा देख लूं कि मेरा शौहर वहाँ है या नहीं। मैं अपनी सोच पर अमल करके अपने कमरे की तरफ आई। बंद दरवाजे को हल्का सा पीछे किया और कमरे के अंदर झांका, मगर मेरे कदमों से जमीन निकल गई। ये देख कर कि कमरा खाली था, यानी वो अब भी अपनी जिंदगी में मगन थे और सिर्फ मेरी ही जिंदगी पर इस सब का असर पड़ा था। वो शख्स खुश था, अपनी जिंदगी जी रहा था। यहाँ मैं और मेरे बच्चे इस गम में घुल रहे थे कि अगर यहाँ से निकल गए तो कहाँ जाएंगे। मुझे अपने शौहर से नफरत महसूस हुई। मेरा दिल किया अभी के अभी बच्चों को अपने साथ लूं और यहाँ से चली जाऊं, मगर आखिर कहाँ जाऊंगी। अपने गरीब माँ बाप पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, उनको मजीद सितम नहीं देना चाहती थी। वो पहले ही 2 बेटियों के दिए जख्मों से अब तक तकलीफ में थे। मैं मजीद अपनी बर्बाद जिंदगी का हाल उनको बताकर उन्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। इसीलिए सोने के लिए बच्चों के कमरे में वापस आ गई। सुबह हुई तो मेरा शौहर काम पर चला गया और मेरी सास ने कहा कि मैं अभी जा रही हूँ, तुम्हारा हलाला करना है ना, तो किसी को देखूं जाकर इंतज़ाम करूं इसका। इनकी बात पर मुझे खुशी महसूस नहीं हुई। मैं सपाट चेहरे से इस बात में सर हिला दिया तो वो दुआएं देती चली गईं। मैं बच्चों के साथ ही लगी रही, मगर दिल में अम्मा जी के आने का इंतज़ार कर रही थी और कुछ देर बाद वो आ भी गई थी, क्योंकि दरवाजे पर होती बेल से मैं समझ गई थी वहीं होंगी। इसलिए बच्चों को कमरे में ही रहने की तलकीन करके मैं कमरे से बाहर निकलकर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो मेरी सास ही वहाँ खड़ी थी। मैंने घर के अंदर उनको आने की जगह दी। वो अकेली थी, इनके साथ कोई नहीं था। अम्मा जी हलाले के लिए मैंने पूछना चाहा पर मेरे होश उड़ गए जब मेरी सास घर में ऐसी चीज़ ले आई थी और बोली कि तेरा हलाला आज नहीं होगा, बल्कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आई हूँ जिससे तुम मेरे बेटे को सीधे रास्ते पर ला सकती हो। इनकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई, क्योंकि जो इनकी बात थी वो इनके हाथ में चीज़ थी। वो देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि इस चीज़ से मेरे शौहर सीधे रास्ते पर हो जाएंगे। मगर इससे क्या होगा अम्मा जी, मैंने डरते डरते कहा। ये एक बड़ी पहुंच वाली बीबी फकीरनी का तवीज़ समझ लो। कहा है तुम चंद दिन इसकी खिदमत करो, खूब खिलाओ पिलाओ इसको, तो इस नेक काम के बदले में तुम्हें तुम्हारा शौहर मिल जाएगा। उन्होंने वो हाथ में पकड़े डब्बे में एक कैद एक छोटा चूजा मेरे सामने किया तो मेरी चीख निकल गई। अम्मा जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब सच नहीं होता। आप बस हलाला करवा दें, बाकी मैं खुद अपने शौहर को देख लूँगी, मैंने कहा तो वो मुझे घूरने लगी। अरे झल्ले, इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए ये तवीज़ नुमा अमल लाई हूँ बीबी फकीरनी से, और तुम हो के कहकर इसका असर ख़त्म कर रही हो। उन्होंने मुझे डांट दिया और तेरा हलाला भी कल इसी चूजे से करवा दूंगी, बात करके आई हूँ बीबी फकीरनी से, वो खफा लहजे में कहकर चली गई। जबकि मैं वहीं सुन सी खड़ी रह गई कि ऐसा कैसे मेरा हलाला एक चूजे से करवा सकती हैं। मुझे तो अपनी सास पर शक होने लगा कि वो चाहती भी हैं या नहीं कि मेरा हलाला हो। फिर मैंने सोचा कि सास पर शक करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो बेचारी तो वही कह रही हैं जो इस फकीरनी ने कहा है। मैंने अगले दिन सास से कहा, आप मुझे इस फकीरनी का एड्रेस दे दें, मैं खुद इसके पास जाऊंगी। असल में मैं देखना चाहती थी कि वो सचमुच की फकीरनी है या बस मेरी सास को पागल बना रही है। उसी रात को मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन करके सारी बात बताई तो उसने कहा, तुम्हारे शौहर का जिस औरत से चक्कर चल रहा है, इसके घर जाओ, अपनी सास को लेकर जाओ और उसे सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करो ताकि वो तुम्हारे शौहर से दूर रहे। पहले इस औरत से जान छुड़ा लो, फिर हलाले का भी सोच लेना। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा।
मैंने अगले दिन शौहर का पीछा किया और इस औरत का घर देख लिया। वापस आकर मैंने अपनी सास को सारी बात बताकर साथ चलने का कहा। मेरी सास मान गई और हम इस लड़की के घर आ गए। अभी मैंने दरवाजे पर दस्तक दी ही थी कि मेरी सास को फोन आ गया। कहने लगी, तेरा शौहर फोन कर रहा था, तू अंदर जाकर जरा इस औरत की खबर ले, मैं इसको कह देती हूँ कि हम बाजार आए हैं। इतने में दरवाज़ा खुला और एक काम वाली औरत ने पूछा, जी किससे मिलना है आपको? मैं इसको अंदर धकेल कर बोली, अपनी मालकन को बुलाओ ज़रा। अंदर से जो औरत बाहर निकली उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। वो भी मुझे अपने सामने देखकर चौंक गई और भागकर मेरे गले लगी। कहने लगी, छोटी तुम यहाँ, तुम्हें मेरे घर का किसने बताया और तुम यहाँ कैसे? मैं तो जैसे सख्ते में आ गई थी। मैंने कहा, मैं तो इस औरत के घर आई हूँ जिसने मेरे शौहर को अपने काबू में कर रखा है, जिसकी वजह से मेरी तलाक हुई और नौबत हलाले तक पहुँच गई। मेरी बहन का ये सुनकर रंग उड़ गया। पूछने लगी, तुम अजीम की बीवी हो? मैंने कहा, हाँ मैं उसी की बीवी हूँ और उसके 3 बच्चों की माँ हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया है, मेरा शौहर मुझे छोड़ने पर तुला हुआ है। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरी ही दुश्मन बन गई हो। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अम्मा अब्बा का दिल दुखाकर बहुत बुरा किया था, इस वजह से मेरे साथ भी बुरा हुआ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, वो एक धोखेबाज था। तब से मैं अकेली ही थी, इसलिए अजीम से रवाबित बढ़ाए ताकि मैं अपने मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहती थी। मुझे नहीं इल्म था कि वो तुम्हारा शौहर है, वरना मैं कभी उसके साथ अफेयर न चलाती। मैं बस अब शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और मुझे सही गलत की पहचान नहीं रही। मुझे माफ़ कर दो। तभी मेरी सास भी अंदर आ गई। मेरी बहन को देखकर मेरी सास चौंक गई और कहने लगी, जिस फकीरनी के पास मैं गई थी ना, वही मैंने इस लड़की को भी देखा था। मेरी बहन शर्मिंदगी से कहने लगी, मैंने तुम्हारे शौहर को तावीज़ों और जादू से अपने काबू में किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मैं पीछे हट जाऊंगी। मैं अपने घर आ गई, दोस्त को फ़ोन करके सारी बात बताई तो वो कहने लगी, मैंने एक आलिम दीन से तुम्हारे मसले का हल पूछा था। उन्होंने कहा था कि अभी 2 तलाक़ें हुई हैं, हलाले की ज़रूरत नहीं, रजू हो सकता है। मैंने अपने शौहर पर दम करना शुरू किया ताकि वो जादू के ज़ोर से बाहर आ जाए। मेरी बहन ने अपनी ज़ुबान का पास रखा था, वो पीछे हट गई थी और मेरा शौहर मुझे वापस मिल गया था। मैंने अपनी बहन को कहा था कि अम्मा अब्बा से माफ़ी मांग ले और उनके पास चली जाए, वो इसका किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा देंगे। मेरी दूसरे नंबर वाली बहन तो मुल्क से बाहर जा चुकी थी। अब्बा ने बहन को माफ़ कर दिया और घर में आने की इजाज़त दे दी। मेरा शौहर मुझे वापस मिल गया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि वो बहक गया था, आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सास को समझाया कि पीरों और फ़कीरों के पास जाना छोड़ दे, क्योंकि एक तरफ वो किसी का घर बसा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ किसी का उजाड़ रहे होते हैं। औरत को बड़ी कुर्बानियाँ देकर अपना घर बसाना पड़ता है, जैसा मैंने किया। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।